مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. میں چاہوں گا کہ پہلے معروف اور منکر یہ دو لفظ جو ہیں ان پہ تھوڑی سی بات کر دوں. جی کہ عام طور پہ جس طرح ہم بیان بھی کرتے ہیں اور سمجھا بھی جاتا ہے کہ جو نیکی کے کام ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے دین کی طرف سے کہے جاتے ہیں ان کو بیان کرنا، ان کی تعلیم دینا، ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا، یہی امر بالمعروف ہے. بالکل. معروف کا لفظ عربی زبان میں معروف عرف سے ہے کہ عرف میں عام طور پہ لوگوں میں جو چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، عقل سلیم جس کو اچھا سمجھتی ہے وہ بھی معروف ہے. جی چاہے ہمیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں معروف کا. چاہے ہمیں واضح طور پہ قرآن مجید میں یا شریعت میں اس کا حکم نہ بھی ملے، لیکن ہماری عقل سلیم اور عام معاشرہ اگر اس کو قبول کر رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ بھی معروف ہے. منکر جس چیز کا انکار کیا جاتا ہے، جس چیز کو عقل سلیم اچھا نہیں سمجھتی، وہ منکر ہے، چاہے ہمارے پاس کوئی واضح اس کے بارے میں حکم ہو یا نہ ہو. تو وہ اچھی چیز جس کو عقل سلیم اچھا سمجھتی ہے، وہ بری چیز جس کو عقل سلیم برا سمجھتی ہے، ان دونوں کے بارے میں ہمارا جو فریضہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. کہ اچھائی کو ہم نے پہچاننا ہے اپنی عقل سلیم سے اور اس کا حکم دینا ہے لوگوں کو، اور منکر جو ہے اس کو ہم نے پہچان کر اس سے روکنا ہے لوگوں کو. تو یہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت مسلمہ کی یہ باقاعدہ ڈیوٹی لگائی ہے. ہمارے امتیاز کا سبب یہ ہے کہ ہم اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی اچھائی کا آغاز کرتا ہے، بھلائی کا آغاز کرتا ہے، تو قیامت تک جب وہ بھلائی ہوتی رہے گی، جب بھلائی ہوگی تو اتنی دفعہ اس پہلے بندے کو اجر ملے گا. سبحان اللہ. جس نے کوئی نیکی ایک دفعہ اس نے کام نیکی کا کیا ہے، کر رہے ہیں، اس کا کوئی نام بھی نہیں ہو رہا. باقیوں نے چونکہ اس سے سیکھا ہے، وہ اچھا کام کرنا سیکھا ہے. اسی طرح برائی ہے، وہ ایک بندہ برائی کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، قیامت تک جب تک برائی ہوتی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں اس کا عذاب لکھا جاتا رہے گا. حضور نے مثال بھی دی حضرت آدم کے بیٹے کی کہ اس نے بالکل قابیل نے حابیل کو قتل کیا. تو یہ قتل کرنا، انسانی جان کا لینا، قیامت تک جو بھی انسانی جان لے گا اس کا عذاب اس کو تو ہوگا، جس نے آغاز کیا تھا اس کو بھی ہوگا. تو یہ جو آغاز کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، سکھانا ہے، چاہے امر کے حوالے سے ہو چاہے نہی کے حوالے سے ہو، لوگوں کو بتانا، اس کی بڑی اہمیت ہے. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. پیر عتیق احمد چشتی صاحب سے ایک اور کانسیپٹ، کیونکہ یہ اتنا حساس موضوع ہے، اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے بہت سے پہلو نظر میں ہونے چاہیے. ایک تو ہے نیکی کا حکم دیں، ایک یہ ہے کہ نیکی صحیح طریقے سے ہو نہ رہی ہو تو اس کو صحیح طور پہ ادا کرنے کے لیے کہنا. تو مجھے وہ بڑے مشہور تاریخ اسلام کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب ایک بوڑھا شخص وضو صحیح نہیں کر رہا تھا تو امام حسن اور امام حسین علیہم السلام نے اس کو، یعنی ایک تو نیکی ہو نہیں رہی، لیکن اگر نیکی ہو رہی ہے تو وہ صحیح طور پر نہیں ہو رہی، تو ان کو انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ وضو کیسے صحیح کرنا ہے. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو مشعل راہ ہمارے لیے وہ واقعہ ہے. سبحان اللہ. بالکل نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت اطہار تو خیر مشعل راہ ہے ہمارے لیے. ہر نیکی کا کام بتانے میں، برائی سے روکنے میں سرکار کا اسوہ ہی سب سے بہتر ہے. اس کے بعد ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے. یقیناً جو امام حسن علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، جس حکمت کے ساتھ انہوں نے وضو ٹھیک کروایا بزرگ کا، بنیادی طور پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں دونوں، تو ہمیں بتائیں دونوں کہ ہمارا کس کا وضو صحیح ہے. حکمت بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
हिकमत कहते ही इसको हैं कि जिसको आप बता रहे हैं, अच्छाई की तालीम दे रहे हैं या बुराई से रोक रहे हैं या किसी की इस्लाह कर रहे हैं, उसका दिल भी ना टूटे, उसके दिल में आपके हवाले से कोई गुबार भी, कोई मैल भी ना आए और उसको तालीम भी हो जाए। तो ये हिकमत नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर की खैर मीरास है। इस हवाले से मज़ीद आप देखना चाहें तो हमारे जो सूफिया हैं बिलखुसूस, उन्होंने जिस तरह इस्लाम की तबलीग की है, लोगों को बुत परस्ती से निकाला है और जिस हिकमत के साथ निकाला है, बिल्कुल जिस इलाके में गए हैं, मिसाल के तौर पर बरे सगीर में सूफिया चिश्त तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने यहाँ के माहौल को देखा, मिजाज को देखा, लोगों के रहन सहन को देखा, उसके मुताबिक खुद ढले और जो बुराई थी उसमें से उन लोगों को निकाल लिया उन्होंने। तो ये हिकमत सबसे ज़रूरी है। अमर बिल मारूफ के लिए, नाही अनिल मुनकर के लिए सबसे ज़रूरी हिकमत है। कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान का। मैंने थोड़ी देर पहले बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना के तहत अर्ज़ किया था कि हिकमत सबसे बुनियादी चीज़ है कि आप नेकी को जानते हैं, ये इल्म होना भी ज़रूरी है। बदी के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ये बदी है, किस वजह से ये बदी है, बुराई है, ये इल्म होना भी ज़रूरी है। लेकिन उस नेकी की तरफ बुलाने के लिए आपके पास हिकमत होनी ज़रूरी है। जैसे आपने फरमाया कि लठ ले के पीछे पड़ जाएंगे आप तो कोई भी नहीं मानेगा। सही बात है, क्योंकि इस्लाम तो है ही दीन मोहब्बत। यानी दलील, लठ से हमारी मुराद है कि दलील के बजाय आप अगर गुस्सा या तशद्दुद, सख्ती, तशद्दुद के हवाले, इस्लाम जो है वो दीन मोहब्बत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम, अइम्मा अहले बैत, औलिया कामिलीन, आप उनकी सीरत को पढ़ें तो मोहब्बत के साथ उन्होंने पैगाम पहुँचाया है दीन का। तो भलाई का काम अगर आप किसी को दावत देते हैं, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ अगर आप दावत देंगे तो यकीनन अगला कबूल करेगा। और अगर मुहाज़राई की, जिस तरह हमारे यहाँ एक माहौल बना हुआ है, मुहाज़राई करेंगे तो फिर कोई भी नहीं मानेगा। इसी तरह बदी से आप रोकना चाहते हैं तो हिकमत के साथ रोकेंगे तो यकीनन लोग रोकेंगे। हिकमत सबसे पहले होनी चाहिए। और जिस तरह के आपने फरमाया कि बुराई के हवाले से, अच्छाई के हवाले से हमारी मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए। जिस तरह आजकल एक साजिश का हमारे यहाँ एक रवैया बना हुआ है कि किसी के बारे में हमने कोई बात लिख दी, पोस्ट कर दी जी, और तो उस पर एक तहरीक शुरू हो जाती है, हालांकि उसमें हकीकत नहीं होती। तो बुनियादी मालूमात जब तक आप हमारे पास नहीं है, किसी के बारे में, किसी बंदे के बारे में, किसी अमल के बारे में बुनियादी मालूमात नहीं है, तो आप उसके अच्छे या बुरे होने का कैसे हुक्म लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे मालूमात, इल्म जब तक नहीं होगा तो हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर मुश्किल है हमारे लिए। बेशक है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। ये जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की इतनी ज़्यादा ताकीद बार बार कुरान पाक में और अहादीस में है, इसका मुझे एक और जो पहलू समझ आता है कि इंसान में जहाँ बहुत खूबियाँ हैं वहाँ ज़ाहिर है कुछ कमियाँ भी हैं, और उनमें एक कमी गफलत की है, भूल जाने की है। इंसान भूलता बहुत है, गफलत में भी हो जाता है। तो इंसान को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर याद दहानी कराने की बार बार ज़रूरत है। और ये ज़िक्र हुआ कि कुरान पाक में भी जो बहुत जगह कई चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो उसका यही मुद्दा बताया गया कि जब इंसान थोड़ा सा कुरान पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें उसके जहन में आ जाएं। इसी को देखते हुए देखता हूँ बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी, हमारे ममालिक में तो है ही कि आपको बहुत जगह पर स्ट्रीट्स में, एयरपोर्ट्स पर, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में वो कतबे नज़र आते हैं जिनमें अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, ताकि इंसान चलते फिरते या उस ख़ास जगह पर जा रहा है तो उस तहरीर को देखे और वो जो गफलत का अगर पर्दा आ सकता है वो ना आए, या आया है तो वो पर्दा जो है वो छट जाए। जी, कुरान मजीद के जो सिफाती नाम हैं उनमें से एक ज़िक्र भी है कि ये कुरान मजीद याद दहानी के लिए आया है। बिल्कुल सही। अब वो जो
मुसद्दका वैल्यूज़ हैं, रिवायात हैं, जी, जी। जिन चीज़ों को अच्छा शुरू से इंसान समझता आया है, आज सही। तक समझ रहा है, हमेशा समझेगा, वो जब भूल जाती हैं तो ये कुरान उसको याद दिलाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हैं, वो उसको याद दिलाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अपना एक इसमें गिरामी सिफ़ाती नाम सैयदुना ज़िक्रुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अल्लाह का ज़िक्र हैं, यानी आप अल्लाह की याद दिलवाने के लिए, वो जो भूली हुई अच्छी रिवायात हैं उनको याद दिलवाने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए हैं। फ़राइज़ वाजिबात वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो रिवायात जो हम भूल चुके हैं, इंसानियत भूल चुकी है, उसको याद दिलाने यानी के लिए क्योंकि आप फितरत तो इंसान की सलीम है, बिल्कुल फितरत तो नेक है। इंसान जी, बिल्कुल। जी। तो याद दिलाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। इस हवाले से हमने बहुत सारी चीज़ों पे बहस की, बात की कि हिकमत भी होनी चाहिए, सलीका भी होना चाहिए, खुश मिजाजी भी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से बात होनी चाहिए। एक और चीज़ है, वक्त का ख़ास ख्याल होना चाहिए जी जी जी। कि जब हम बात कर रहे हैं, क्या ये बात करने का वक्त है, ये दुरुस्त वक्त है। मिसाल के तौर पर आजकल हम ये वायरस फैला हुआ है तो उसकी वजह से हम आइसोलेशन और लॉकडाउन और हम अपने घरों में बंद हैं, सोशल डिस्टेंस हमारे दरमियान पाया जाता है। तो इस दौर में अगर कोई अच्छी तालीम ये देता है कि आओ अल्लाह ताला के घर में सारे इकट्ठे हो जाओ, तो ये वक्त नहीं है, सही बात। ये दुरुस्त टाइम नहीं है इस तबलीग का। हालांकि बात अच्छी है, हाँ, रब के घर में सबको बुलाना बहुत अच्छी ये मिसाल अच्छी थी, बात है, बहुत अच्छी मिसाल। लेकिन वक्त नहीं है इसका। इस वक्त का तकाजा ये है कि हम एक दूसरे से कुछ वक्त के लिए दूर रहें, जी, ताकि ये बला हमारे सर से टले, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसकी तबलीग क्योंकि करेंगे। जितना इज्तिमा होगा उतना ही ज़्यादा इसके फैलने का खतरा भी है, और ये यानी प्रोलॉन्ग होने का खतरा भी है। यस, तो इसलिए सबसे ये ज़रूरी तरीन चीज़ है कि वक्त का हमें ख़ास ख्याल यानी रखना। हर बात हर वक्त के लिए हर भी वक्त नहीं के होती। लिए नहीं होती, बहुत अच्छी है। बात भी हर वक्त के लिए नहीं होती, बहुत उसका एक ख़ास वक्त होता है उसकी तबलीग करने का। इसी तरह हम बुराई से जब रोकते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इसको रोकने का वक्त है या नहीं है। वक्त के बगैर हम बेवक्त की बात अगर करेंगे तो उसका ना असर होगा, ना उस पर अमल किया जाएगा। उल्टा हम जो तबलीग कर रहे हैं वो हमारे लिए अज़ाब बन सकती है। तो वक्त का खुसूसी ख्याल हमें रखना पड़ेगा इस हवाले से। मरहबा